Next topic, that is a 12.13. It is Carnot engine. It is one of the very important topic, right? Most IMP topic. Okay, so what is the Carnot engine? क्या है ये? तो बिफोर इट एक पहले नोट्स ले लेते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, राइट? नोट या फिर समरी भी आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. ओके, नाउ सी फॉर adiabatic process, what is the relation? That is the PV raised to gamma, that is remain constant. Okay, what is the result? PV raised to gamma is remain constant, right? So it is a relation between pressure and volume, that is the PV raised to gamma is a constant, right? Now I want a relation between temperature volume एंड प्रेशर टेम्परेचर, राइट? तो एक रिलेशन कुछ इस तरह से होता है दैट आई हैव इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी. तो P इज इक्वल टू क्या होगा? यू कैन से इट इज़ अ म्यू आर टी अपॉन वी. चलो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें, तो P की जगह पर होगा म्यू आर टी अपॉन वी इंटू वी रेज टू गामा, that is equal to constant, right? Now mu r constant. Now see here you can say mu r is a constant and constant, so constant upon constant, that is another constant. Okay, and v का पावर है 1, ऊपर जाएगा तो -1, so you can say tv raised to gamma -1, that is remain constant, right? Tv raised to gamma -1 is remain constant, right? So it is a relation between temperature and volume. What? It is a relation between temperature and volume, that is the Tv raised to gamma -1 is remain constant. Next one, once again we consider the same equation, that is the PV is equal to mu RT. Then what is the V? V is equal to mu r t upon P. ओके, तो सब्सटीट्यूट करो P इंटू म्यू आर टी अपॉन P रेज टू गामा, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू P इंटू म्यू आर रेज टू गामा T रेज टू गामा अपॉन P raised to gamma, that remain constant. So friends, once again here we can say that mu r raised to gamma is a constant and constant, so constant upon constant, that is a another constant, and P का पावर है 1, right? So what is the relation? T raised to gamma upon P raised to gamma -1, that is a remain constant, right friends? So it is a relation between temperature and pressure, right friends? So here we have this different relation. okay, चलो दूसरा जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, that is equation for isothermal process. what? isothermal process. तो चलो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यू कैन से टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यू कैन से पीवी इज रिमेन कांस्टेंट. ये एक फॉर्मूला आपको याद है. एंड देन व्हाट इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? दैट इज द म्यू आर टी ln of V2 upon V1. This equation we are going to use. Okay, now according to first law of thermodynamics, what you can say? Q is equal to U plus W. बट आइसोथर्मल प्रोसेस है तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 0. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस U इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यू कैन से Q इज इक्वल टू W.
Okay, it is for what? Isothermal process. Q is equal to W, that is a Q is equal to W, that is equal to mu r T ln of V2 upon V1, right? तो ये इक्वेशन इतना हमें ध्यान में रखना है, ओके, फॉर कार्नोट इंजन। चलो अब हम आते हैं कार्नोट इंजन पर। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज अ कार्नोट इंजन एंड हाउ इट इज अ वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले कंसीडर करते हैं एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। क्या कंसीडर करेंगे हम? कंसीडर करेंगे एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, राइट? सो इट इज लाइक दिस, it is a piston cylinder device, right? और यहाँ पर you can say it is like this, बराबर। अब यहाँ पर अंदर है हमारे पास working substance, right? So what is the working substance? So working substance as a एनी गैस मॉलिक्यूल, बराबर है। क्या है ये? ये है गैस मॉलिक्यूल। दिस इज अ वर्किंग सब्सटेंस, राइट? नाउ सी हियर वी कैन से दैट द वॉल ऑफ सिलेंडर इज मेड अप ऑफ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग मटीरियल एंड बॉटम ऑफ सिलेंडर इज मेड अप ऑफ परफेक्टली कंडक्टिंग मटीरियल, दैट वी नो, ओके। अब यहाँ पर हम तीन चीज़, मतलब दो चीज़ कंसिडर करेंगे। एक दैट इज लाइक दिस, एक है ये, राइट? सेकेंड वन, okay, you can say it is a first one, it is for first stage, right? चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको ही, फर्स्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है, राइट? सो जस्ट फोकस हियर नाउ। सो इट इज अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ये पर्टिकुलर क्या है? यू कैन से इट इज पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, राइट? ये है इंसुलेटेड स्टैंड। क्या है? इंसुलेटेड स्टैंड। तो इंसुलेटेड स्टैंड पर जब हम ये हमारे सिस्टम को रखेंगे तो ये कंडक्टिंग है, बट ये आ जाएगा इंसुलेटेड पर, मतलब ये भी है इंसुलेटेड, ये भी इंसुलेटेड। चलो लिख देते हैं, यू कैन से इट इज अ वॉल is made up of perfectly insulated material से, and you can say it is a bottom is made up of perfectly conducting material, ओके। चलो अब क्या होता है कि ये है सोर्स। क्या है ये? सोर्स। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T1। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? Q1। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? Q1। मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? सो यू कैन से आइसोथर्मल। कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोथर्मल, राइट? फिर उसको हम रखेंगे इंसुलेटेड स्टैंड पर, सेकेंड स्टेज में इंसुलेटेड स्टैंड पर, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, बॉटम कंडक्टिंग थी बट ये इंसुलेटेड स्टैंड आ गया, देन द प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर स्टेज 2 में क्या होगी? यू कैन से इट इज़ अ एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो थर्ड स्टेज में हम उसको रखेंगे सिंक पर। हियर इट रिजेक्ट हीट Q2 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T2,
मतलब जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये प्रोसेस भी कौन सी होगी, सो यू कैन से द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल। एंड वंस अगेन फिर से हम रखेंगे उसको इंसुलेटेड स्टैंड पर, राइट। तो यहाँ पर प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो 4 स्टेज में डिवाइड होगा, ये हमारी टोटल प्रोसेस है वो 4 स्टेज में डिवाइड होगी। यू कैन से स्टेज 1। व्हाट इज योर स्टेज 1, सो इट प्लेस एट सोर्स। कहाँ पर रखेंगे, सोर्स पर। टेम्परेचर कितना रहेगा, T1। हीट एब्जॉर्प्शन किया होगी Q1। एंड क्या प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल। क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहां पर हीट एब्जॉर्ब करेगी, मतलब होगा एक्सपांशन। क्या होगा, एक्सपांशन। सो स्टेज 1 इज अ एक्सपांशन। कहां पर रख रहे हैं हम, सोर्स पर रख रहे हैं। इट एब्जॉर्ब द हीट Q1, टेम्परेचर T1 एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। बराबर। चलो स्टेज 2। व्हाट इज द स्टेज 2, अब हम स्टेज 2 में उसको रख रहे हैं इंसुलेटेड स्टैंड पर। पहले हमने रखा सोर्स पर, अब हम रख रहे हैं इंसुलेटेड स्टैंड पर। बराबर है। तो प्रोसेस कौन सी होगी, यू कैन से इंसुलेटेड स्टैंड पर। तो प्रोसेस होगी, यू कैन से एडियाबेटिक प्रोसेस। फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूं, वाई एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल है इंसुलेटेड, बॉटम है कंडक्टिंग, बट उसको हमने रख दिया इंसुलेटेड स्टैंड पर, तो बॉटम भी होगा इंसुलेटेड, तो सब पूरे सिस्टम हो गए इंसुलेटेड। तो मतलब क्या होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। और यहां पर हीट ऑलरेडी एक्सपेंड, मतलब उसने एब्जॉर्ब करके रखी है, तो यहां पर एडियाबेटिक में क्या होगा, तो एडियाबेटिक में होगा एक्सपांशन। तो स्टेज 1 एंड 2 होगा एक्सपांशन। नाउ स्टेज 3। ओके, व्हाट इज द स्टेज 3, तो स्टेज 3 में हम उसको रखेंगे सिंक पर। चलो सिंक में हीट होगी रिजेक्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T2। कितनी हीट रिजेक्ट होगी, Q2। ओके, सो जस्ट सी हियर, हम रखेंगे उसको सिंक पर, राइट। सो T2 टेम्परेचर कांस्टेंट, रिजेक्शन ऑफ हीट इज Q2। और यहां पर प्रोसेस होगी आइसोथर्मल। कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल। अब रिजेक्ट हो रहा है, तो यहां पर होगा कंप्रेशन। क्या होगा, कंप्रेशन। दैट इज स्टेज 3 इज अ कंप्रेशन, राइट। चलो अब हम फिर से कहां पर रखेंगे, उसको रखेंगे इंसुलेटेड स्टैंड पर। तो फिर से प्रोसेस हो जाएगी एडियाबेटिक, राइट। और एडियाबेटिक में क्या होगा, कंप्रेशन। सो वंस अगेन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। दैट मीन्स यू कैन से इट इज अ स्टेज 4। तो फिर से हम रखेंगे उसको इंसुलेटेड स्टैंड पर, राइट। तो यहां पर प्रोसेस होगी एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक में होगा कंप्रेशन। क्या होगा, एडियाबेटिक में कंप्रेशन, राइट। तो इस तरह से ये चारों 4 स्टेज है, राइट। द प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस, मतलब वापस वही अपने स्टेज पर आ जाएगी जहां से हमने स्टार्ट किया है। सो कार्नोट इंजन इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट फ्रेंड्स। नाउ वी आर ड्राइंग PV डायग्राम फॉर दिस प्रोसेस। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स ये पूरा आपको मिनिमम 2 to 3 टाइम ये पूरा वीडियो देखना है जो हमने कराना है अभी। ओके, ये पूरा आप देखोगे तभी समझ में आएगा आपको। सी
इट इज पीवी डायग्राम, बराबर। अब यहाँ पर मैं 4 पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखो, एक लाइन में नहीं आने चाहिए। 1 2 3 एंड 4, चारों चार एक लाइन में नहीं है, कोई भी एक लाइन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, राइट। चलो अब यू कैन से इट इज अ पीवी डायग्राम, राइट। सो यहाँ पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, यू कैन से प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1, राइट। वो जाता है A पॉइंट टू B पॉइंट, मतलब ये प्रोसेस जाएगी कुछ लाइक दिस, A टू B। कौन सी प्रोसेस है? यू कैन से आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या हो रहा है? एक्सपांशन। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे P2 V2 बट टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज अ T1, राइट। चलो देन B2 C, थोड़ा सा कर्व देना है, ओके। B2 C, चलो B2 C में क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक में होता है एक्सपांशन, मतलब यहाँ पर तीन वेरिएबल होंगे, मतलब ये C पॉइंट पर होगा P3 V3 एंड टेम्परेचर इज T2। व्हाट इज द टेम्परेचर? T2। चलो अब C2D, C2D में, ओके, ये प्रोसेस कौन सी है? सो यू कैन से इट इज अ वंस अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? कंप्रेशन होगा। क्या होगा? कंप्रेशन। मतलब ये D पॉइंट के लिए प्रेशर है P4, वॉल्यूम है V4 एंड टेम्परेचर है T2। वंस अगेन फ्रेंड्स, क्या है? फिर से एक बार कि प्रेशर है P4, वॉल्यूम है V4 एंड टेम्परेचर है T2 अप टू पॉइंट D, राइट। देन वंस अगेन D to A, राइट। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? तो वंस अगेन यू कैन से इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक में होगा कंप्रेशन। क्या होगा? कंप्रेशन, एंड इट रीच टू मीन पोजीशन, दैट इज अ A, बराबर है फ्रेंड्स। चलो बाय दिस वे इट इज द स्टेज 1 2 3 4, बराबर है। तो पहले हम फाइंड करेंगे वर्क डन, ओके। तो हियर वी नो दैट वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, that is what? mu RT ln of V2 upon V1, and work done during adiabatic process, that is equal to mu R T1 minus T2 upon gamma minus 1. What is it? Mu R T1 minus T2 gamma minus 1, ओके। ये दोनों वर्क का हमें यूज करना है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस और ये एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। चलो देखते हैं। यू कैन से नाउ स्टेज 1। सो व्हाट इज फॉर स्टेज 1? स्टेज 1 के लिए क्या होगा? सो यू कैन से इट इज आइसोथर्मल एंड यू कैन से एक्सपांशन। सो वर्क डन from 1 to 2, that is equal to, you can say Q1, that is equal to mu R T1 ln of V2 upon V1,
Yes or no? Yes, it is the work done during isothermal process. चलो stage 2. What is the stage 2? So you can say it is adiabatic. Stage 2 is a adiabatic, but adiabatic में होगा expansion. So W 2 to 3, that is equal to mu r T1 minus T2 अपॉन गामा माइनस 1. चलो फिर से एक बार कि यहाँ पर A to B आइसोथर्मल, B to C एडियाबेटिक, म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1. सॉरी, T1 माइनस T2 upon gamma minus 1, right? Here T1 is greater than T2. T1 minus T2 upon gamma minus 1. Stage 3. It is, what is the stage 3? So you can say it is isothermal compression, W 3 to 4, that is equal to Q2, that is mu r T2 ln of V4 upon V3. What is it? Mu r T2 ln of V4 upon V3. But here you can place negative sign. Why negative sign? It is the work done on the system. क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव. दैट मीन्स यू कैन से अगर नेगेटिव साइन को हटानी है तो ये V4 V3 की मतलब उल्टा देंगे उसको. म्यू आर T2 ln ऑफ V3 अपॉन V4, राइट? यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, equation number 3. Now stage 4, then it is what? Stage 4 is adiabatic, but adiabatic में क्या होगा? compression होगा. okay, that is equal to, previous देख लेते हैं, mu r T2 minus T1, T2 minus T1, right? एडियाबेटिक में वर्क डन 4 to 1, that is equal to mu r T2 minus T1 upon gamma minus 1. You can say it is equation number 4. okay, ये Q1 that is the heat absorb, Q2 that is the heat reject, right? So it is like this. So this 4 stage 4 work done. okay, therefore friends, what is the total work done? You can say total work done. What is the total work done? So total work done is a summation of all this work. क्या होगा? It is a summation of all this work, that is W is equal to W1 plus W2 minus W3 minus W4. एक्सपांशन के लिए पॉजिटिव वर्क डन, कंप्रेशन के लिए नेगेटिव वर्क डन. वाई? बिकॉज इट इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड देन वर्क डन ऑन द सिस्टम. ओके, सो हियर W1 that is equal to mu r T1 ln of V2 upon V1 plus W23 that is equal to, you can say, mu r T1 minus T2 upon gamma minus 1 minus mu r T2 ln of
V3 upon V4 minus mu r, we can say T1 is greater than T2, T1 minus T2 upon gamma minus 1. So these two get cancelled. So total work done, that is a mu r T1 ln of V2 upon V1 minus mu r T2 ln of V3 upon V4, right? तो एक छोटा सा पॉइंट था, इट इज़ नॉट दिस मच इम्पोर्टेंट. टोटल वर्क डन हो गया. द नेक्स्ट वन, it is one of the very important, that is the efficiency of Carnot engine. Efficiency of the Carnot engine. So what is the efficiency? That is the output upon input. हमने हीट इंजन में देखा था. That is the W upon Q1, or you can say eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1. 1 minus Q2 upon Q1, you can say equation number star. चलो, therefore eta is equal to 1 minus, what is the Q2? Q2 is equal to mu r T2 ln of V3 upon V4. Mu r T2 ln of V3 upon V4 upon Q1, that is a mu r T1 ln of V2 upon V1, right? You can say mu r get cancel, right? That means you can say 1 minus T2 ln of V3 upon V4 upon T1 ln of V2 upon V1. You can say it as equation number star. साइड में रख देते हैं. ओके, चलो फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमें? तो यहाँ पर एक सिंपल हमें ये करना है कि ये दोनों को हमें कट करवाना है, राइट? तो कैसे करेंगे? तो जस्ट फोकस हियर कि यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? तो हमने पहले ही देख लिया था. व्हाट इज द relation between temperature and volume, that is the TV raised to gamma minus 1 is remain constant. Okay, तो यहाँ पर होगा T1 V2 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V3 raised to gamma minus 1, और यहाँ पर होगा T2 V4 raised to gamma minus 1 is equal to T1 V1 raised to gamma minus 1. ये दो इक्वेशन मिलेंगे. ओके, दैट इज अ प्रोसेस B2C या स्टेज 2 T1 V2. ओके, देख लेते हैं स्टेज 2. यू कैन से स्टेज 2 में T2, सॉरी, इट इज अ T1 V2 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V3 raised to gamma minus 1, right? Therefore, you can say that T1 upon T2, or you can say T2 upon T1, that is equal to V2 upon V3 raised to gamma minus 1. That implies V2 upon V3 is equal to T2 upon T1 raised to 1 upon gamma minus 1. Okay, you can say equation number 1. And then हमने देखा था स्टेज 4. चलो, स्टेज 4 में क्या था? दैट इज अ T2 V4 raised to gamma minus 1 is equal to T1 V1 raised to gamma minus 1. ओके, therefore यहाँ पर था T2 upon T1,
that is equal to V1 upon V4 raised to gamma minus 1. That is V1 upon V4 that is equal to T2 upon T1 raised to 1 upon gamma minus 1. Right? You can say it is the equation number 2. चलो दोनों साइड में राइट हैंड साइड सेम है. That is from 1 and 2 you can say from equation 1 and 2 what you can say T2 upon T1 raised to T2 upon T1 1 upon gamma minus 1 that is equal to V2 upon V3 V2 upon V3 is equal to V1 upon V4 is equal to V1 upon V4. ओके अब यहाँ पर ये इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ. ये हमारा जो इक्वेशन नंबर स्टार है. ओके ईटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है हमारे पास. ओके V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V4. अब हमें सेट करना है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4. हो गया सेट. दैट इज V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4. ओके फ्रेंड्स कैसे सेट हुआ. V3 ऊपर गया V1 नीचे आया. राइट नाउ ये जो रिलेशन है कौन सा रिलेशन है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4. ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं. ओके तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ln ऑफ V3 अपॉन V4 अपॉन T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 की जगह पर V3 upon V4. Right friends? So here ln this to get cancel ln of V3 upon V4 ln of V3 upon V4. Therefore we have relation eta is equal to 1 minus T2 upon T1. What is the eta? Eta is equal to 1 minus T2 upon T1. It is the efficiency of Carnot engine. It is one of the very important derivation. It may be asked in 4 marks, 5 marks, 3 marks, 2 marks. कट करके कौन से भी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन सेट हो जाता है. राइट फ्रेंड्स. सो